ہفتے کے اختتام پر سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کے سبب سبزی فروش بھی کم مقدار میں سبزیاں فروخت کرنے کے لیے لانے لگے ہیں۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے جہاں کڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا، وہیں کئی راستے بھی سیلابی ریلوں کے باعث کٹ گئے ہیں، جس کے باعث ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا ہے۔ مطلوبہ مقدار سے بہت کم سبزی کراچی کی سبزی منڈی پہنچ رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز 160 روپے اور کہیں اس سے زائد پر ٹماٹر کم از کم 200 روپے کلو سے لے کر 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ دھنیا پودینہ 35 سے 40 روپے تک دستیاب ہے۔ لوکی پالک 200 روپے اور تورئی 250 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ سبزی منڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ طلب اور رسد بہتر ہونے سے ہی قیمتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سیلاب کی بپھری لہروں نے پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ اندرون ملک سپلائی متاثر ہونے کے باعث شہر میں پھل شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ طوفانی بارشیں، بھرتے دریا، کھیت کھلیان اور ہزاروں بستیاں ملیا میٹ کرتی سیلابی لہریں۔ سبزیوں کے بعد ملک میں پھل فروٹ بھی نایاب ہونے لگے۔ کراچی کی مارکیٹوں میں ریٹیل کی سطح پر سیب 200 روپے سے 250 روپے کلو تک دستیاب ہونے لگا۔ کیلا 90 روپے درجن تک دستیاب ہے۔ دوسری جانب آڑو 300 روپے اور ناشپاتی 200 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھل فروش کہتے ہیں کہ پھلوں کی سپلائی میں کمی قیمتوں میں اضافے کا سبب ہے، جبکہ شہری مطلوبہ مقدار میں پھل مہنگائی کے باعث خریدنے سے قاصر ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے راستے جام ہیں، راستے بند ہیں، اس وجہ سے مال مہنگے ہیں، بہت مہنگے ہیں۔ اور وہ پیچھے سیلابی ریلوں کی وجہ سے زیادہ فروٹ میں ہو گیا، زیادہ مہنگائی سے اچھے خاصے مہنگے ہو گئے۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں تاکہ بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء سستی ہو سکیں۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ سندھ کے مختلف حصوں سے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ خاندانوں کا کراچی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کے ستائے ہوئے متاثرین میں بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان بچوں کی تعلیم تو متاثر ہو گئی، لیکن اس وقت چھوٹے بچوں کو کپڑوں کی شدید ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کیمپ پر اس وقت ہمارے نمائندے عاجز جمالی ننھے منھے بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے مزید جانیں گے۔ جی عاجز۔ جی دیکھیں، سیلاب متاثرین تو سبھی ہیں، یہاں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہے یا سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کا اسکول ڈسٹرب ہوتا ہے، ظاہر ہے اب یہ سارے بچے اپنے علاقوں سے آئے ہیں۔ یہاں اس کیمپ پہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے بھی موجود ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا آج ہم بچوں سے بات کر لیتے ہیں، گپ شپ کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا آپ کہاں سے آئی ہو؟ ہم نواب شاہ سے ہیں۔ نواب شاہ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہیر۔ کوئی آپ کو پوئم یاد ہے اپنا؟ ہاں۔ وہ مجھے بتا دیں۔ ہاتھی راجا کہاں چلے، سونے لا کر کہاں چلے، میرے گھر میں آؤ نا، حلوہ پوری کھاؤ نا، آؤ بیٹو کرسی میں، کرسی بولے چتر پتر۔ واہ واہ، شاباش، تالیاں تالیاں ہونی چاہیے۔ ہیر نے زبردست پوئم بتائی ہے ہمیں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہنا۔ ہینا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں ون۔ ایک یہ بچہ ہے چھوٹا سا، آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ مبین۔ مبین۔ ہاں۔ مبین، آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اسکول ہے آپ کا؟ ہاں۔ اب وہاں کیا صورت حال ہے؟ اسکول بند ہو گیا؟ پنجی پڑھتا ہوں۔ پنجی میں، پنجی کلاس میں آئے ہو۔ ہاں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دیہاتی بچے ہیں، اس طرح ان کا ٹیلنٹ تو ہے۔ یہاں اس کیمپ پہ میں نے جو سماجی رضاکار کام کر رہے ہیں ان سے میں نے معلومات لی کہ 200 سے زائد اس کیمپ پر بچے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں بڑوں کے تو کپڑے ہیں ہی سے، لیکن بچوں کو کپڑوں کی شدید ضرورت ہے۔ تو یقیناً ہماری آواز دور دور تک جا رہی ہے۔ جو لوگ سماجی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سامان لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس کیمپ میں یہ گورنمنٹ ڈگری کالج شاہ نواز شہر گوٹ ہے، تو یہاں پہ اگر ممکن ہو سکے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آپ 4 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک کپڑے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت اور فلاحی اداروں کے بعد پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم بھی میدان میں آ گئی ہے۔ کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے جناح اسپتال کے باہر ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔
सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तुलबा तंजीम PSF ने जिना अस्पताल के बाहर रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जहां मौजूद कारकुनान मुतासरीन की मदद के लिए फंड जमा करने में मसरूफ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए निकले कारकुनान कहते हैं कि इस वक्त सिंध के शहरी मुश्किल में हैं, तो वो कैसे घरों में बैठ सकते हैं। हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पर ये पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का हमने कैंप लगाया जिना के बाहर। हम दूसरी तुलबा तंजीम को यही हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी तुलबा तंजीमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हर जगह पे कैंप लगाएं। सर हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाह रहे हैं। अगर कोई भाई इसमें मदद हमारी करेगा तो उसको एहसाल सवाब भी होगा और अल्लाह ताला की तरफ से एक उसकी नेकी भी शुमार होगी। तुलबा तंजीम के कारकुनान का कहना था कि अगर इन्हें कराची में हिजरत करने वाले सैलाब मुतासरीन को अपनी रिहाइशगाह भी फराहम करनी पड़े तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अंदरूने मुल्क में जारी बारिशों और सैलाबी रैले की तुंदो तेज मौजों ने जहां निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है, वहीं ज़मीनी रास्ते कटने से कौमी शाहराहों पर सैकड़ों कार कैरियर फंस चुके हैं, जिसके बायस कीमती गाड़ियों की तरसील भी आर्जी तौर पर रुक गई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। सैलाब की तबाहकारियां जारी, हर तरफ पानी ही पानी। खौफनाक सैलाबी सूरत-ए-हाल ने जहां तबाही मचा दी है तो वहीं अशिया ज़रूरियात की सप्लाई मुतासर होने के साथ साथ कार कैरियर को भी ब्रेक लगा दिए हैं, जिसके बायस अंदरूनी मुल्क कीमती गाड़ियों की तरसील रुक गई है। सिंध समेत मुख्तलिफ कौमी शहरों पर कमोबेश 100 कार कैरियर फंसे हुए हैं। तकरीबन 100 के लगभग कार कैरियर कराची से लोड होकर अप कंट्री के लिए गए थे, वो ताहाल अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। आज छठा 7वां दिन है, मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर वो कार कैरियर जो हैं वो कीमती कारों को लोड करके खड़े हैं वहाँ पर। इसी तरीके से जो कार कैरियर वापस आ रहे थे वो भी ताहाल वापस नहीं आए, वो भी इसी तरीके से कार कैरियर जो हैं वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं। सदर पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन इमदाद नकवी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से कंपनियों को 30% गाड़ियों के किराए बढ़ाने का कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि कार कैरियर के जो ऑपरेशन है वो मुतासर हो रहा है, हम कारों का किराया जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हमने कंपनीज़ को दरख्वास्त की है कि वो हमारे किराया जात के ऊपर गौर करें और हमारे किराया जात को बढ़ाएं। तो हमने कंपनीज़ को तकरीबन 30% किराया जो है वो बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की है। सदर कार कैरियर एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, तो वहीं सख्त मौसम माल बरदार गाड़ियों के पहिए को जाम करने का सबब बन रहा है। कैमरामैन फैसल खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल हाईवे N5 पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। 2 घंटों का सफ़र 24 घंटों में तय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों पर माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें ट्रांसपोर्टर्स की मदद के लिए सामने आएँ ताकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपनी सर्विसेज बहाल रख सकें। इस वक्त सिंध में कई मकामात पे हमारी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और कई किलोमीटर तवील कितारें लग चुकी हैं। इन कितारों की जिम्मेदारी जहां सैलाबी सूरत हाल पे आयद होती है, वहीं इसकी बहुत बड़ी वजह इदारों की नाअहली और इंतज़ामिया की नाकामी है। मोटरवे पुलिस जो गाड़ी वालों से जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए वसूल करती है, इस वक्त मौके पे नज़र नहीं आ रही। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते और ड्राइवर्स की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद करते, लेकिन पूरे रोड में सिंध में नेशनल हाईवे N5 के ऊपर मोटरवे पुलिस नज़र नहीं आ रही। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जहाँ जहाँ से रोड ख़राब हुए हैं उनको बेहतर बनाने में किरदार अदा करती, वो भी अपनी जिम्मेदारी से को अदा करने से कासिर है। तो इस सूरत हाल में हमारे ड्राइवर शदीद परेशान है। वहाँ दिन के वक्त तो कोई खाने पीने की चीज़ मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो वो उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ड्राइवर्स उसे ख़रीदने से कासिर हैं। और रात के वक्त वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। हमारे ड्राइवर्स को रात को 5-6 लोग आते हैं, वो असले के ज़ोर पे कई गाड़ियों को लूट लेते हैं। तो ये एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें अगर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन ना लिया तो हमारे लिए कारोबार करना या गाड़ियों को रोड पे रवां दवा रखना मुश्किल हो जाएगा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को राशन नहीं बल्कि तैयार पके हुए खाने की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन के पास न बर्तन है ना ही कपड़े हैं। पूरी कौम से अपील है कि पुराने कपड़े फौरी तौर पर फलाही इदारों को पहुँचाएँ। मज़ीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से।
सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने बताया कि सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने के लिए हम बदीन तक ही जा सके। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हालात तो सोच से भी बदतर हैं। मुतासरीन को अभी फौरी राशन देने से कुछ नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि सैलाब मुतासरीन के पास कुछ भी नहीं बचा। उन्हें अभी फौरी पके हुए खाने की जरूरत है। जा रहे हैं रेस में, ये रेस नहीं चलेगी। राशन का जो मरहला आएगा 10 दिन बाद आएगा। अब लोग राशन कर रहे हैं। मेन चीज़ जो अभी ज़रूरत है, कुकिंग आइटम रेडी, जैसे बिस्किट भी दे दें, चावल पुलाव बना के दें, कुछ भी करें वो दें। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने बताया कि इस वक्त हमारे लिए शर्म का मकाम है। सैलाब की सूरत-ए-हाल पर सबको निकलना होगा। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। सेकंड जो हमारे लिए शर्म का मकाम है, इन पाकिस्तानियों के लिए हम जो बैठे हैं सेठ लोग सब आगे आएँ, इस मुल्क को बचाएं, इन अवाम को बचाएं। देखिए इधर जाके मैंने ये देखा कि बच्चे नंगे हैं, मर्द भी अब कपड़े से महरूम हो रहे हैं। और आखिरी मरहला ये आ गया है, अल्लाह मेरे मौला इस पाकिस्तान पर रहम फरमा कि लेडीज के लिए भी परेशानी हो रही है कपड़ों की। बिजनेस कम्युनिटी ने अपील की है कि सैलाब से बहुत बड़ा पहुंचा है। सैलाब मुतासरीन की नजरें हम पर जमी हुई हैं। उनके लिए सबको कुछ न कुछ करना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए MQM पाकिस्तान ने भी मदद की अपील कर दी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सद्दीकी ने कहा है कि सियासी कायदीन सियासत को पसे पुश्त डालकर इस इंसानी अलमिया में कौम को हिम्मत दें और एक कौम बनकर सब अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि काला बाग डैम भी बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वफाकी वजीर अमीनुल हक समेत MQM के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शहर में इमदादी कैंप कायम करने का ऐलान और मुतासरीन की मदद करने की अपील। सबसे इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि कौम की तरह इस वक्त हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अवाम से, मुखय्यर हज़रात से हम बड़ी मुअद्दबाना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इस वक्त अपने उन तमाम भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। एक सवाल के जवाब में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि काला बाग डैम बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काला बाग डैम जैसे कई डैम भी जिस तरह का तूफ़ान आया है और जिस तरह का सैलाब आया है और ग्लेशियर आपके डैम्स बह गए हैं सारे बलूचिस्तान के, कोई नहीं बचा है। आपको तो अब और बड़े बहरान का काला बाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, काला बाग डैम में ज़रूर बनना चाहिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि रेलवे ट्रैक के साथ फाइबर ट्रैक भी मुतासर हुआ है। हमने बैलेंस ना होने की सूरत में फ्री कॉल की सहूलत दी। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। मानसून बारिशों की तबाहकारियों के बाद बहाली के काम का आगाज़। मुख्तलिफ महकमों के 8 अफसरान का रज़ाकाराना काम का फैसला। अफसरान गैर मुअय्यना मुद्दत तक PGMA के मातहत काम करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मानसून बारिशों की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ महकमों के 8 अफसरान का रज़ाकाराना काम का फैसला किया गया है। अफसरान गैर मुअय्यना मुद्दत तक PGMA के मातहत काम करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं मानसून बारिशों की तबाहकारियों के बाद अब बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है और अफसरान जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर अब काम करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 19 ग्रेड के डायरेक्टर ख़जाना की खाली असामी पर गुलाम मुर्तज़ा शेख की तैनाती कर दी है। सिंध सरकार ने मानसून बारिशों की तबाहकारियों के बाद बहाली के कामों को यकीनी बनाने के लिए सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 19 ग्रेड के डायरेक्टर ख़जाना की खाली असामी पर गुलाम मुर्तज़ा शेख की तैनाती कर दी है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। गुलाम मुर्तज़ा शेख इससे पहले सेक्रेटरी तालीम थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम गुलाम मुर्तज़ा शेख का तबादला करके डायरेक्टर ख़जाना सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। कराची के 7 अजला में कैंप्स लगाए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने शहर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कहा सुपर स्टोर्स के बाहर चंदा कैंप्स भी लगाए जाएंगे। कराची के 7 अजला में कैंप्स लगाए जाएंगे, ऐसा फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, किन किन मकामात पर कितने कैंप्स लगाए जा चुके हैं, कितना अमल दरामद देख रहे हैं आप?
جی دیکھیں، یہ کراچی کے کمشنر کراچی ہیں اقبال میمن صاحب، ان کا آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے خصوصی طور پہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک نیا SOP دیا ہے، جس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ شہر کے جتنے سپر اسٹورز ہیں ان کے باہر کیمپ لگائے جائیں، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کی زیادہ ضرورت ہے، تو بہت سارے مخیر حضرات ان اسٹورز کے باہر اگر کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں تو وہ جمع کی جائے، اور اس کے لیے جو سپر اسٹورز کی مینجمنٹ ہے، جو مالکان ہیں، ان کو بھی آمادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ تمام اضلاع میں متاثرین کے لیے کیمپ لگائے جائیں، لیکن جو شہر کے داخلی راستے ہیں وہاں پہ بینر آویزاں کرنا ضروری ہے، جہاں پہ باقاعدہ رہنمائی کی جائے متاثرین کی کہ کہاں کہاں پر کیمپ ہیں، ان کو کہاں جانا چاہیے، کس طرح رابطہ کرنا چاہیے۔ اور ٹول پلازا جو ہیں شہر کے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے، ان کے ٹول پلازاؤں پر بھی بینرز آویزاں کیے جائیں، اور اس طرح یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنا بھی سامان جمع ہو رہا ہے یا جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کی انوینٹری ہونی چاہیے، ان سب کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور جتنے لوگ شہر میں داخل ہو رہے ہیں ان کی مکمل ایک ہر کیمپ سے رجسٹریشن کی جائے، اور جو سامان کیمپوں پہ ریلیف کیمپوں پہ جمع ہو رہا ہے اس کی بھی انوینٹری کی جائے تاکہ اس کو صاف اور شفاف رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل PIA کے جعلی ڈگری میں ملوث 3 ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان جو ہیں وہ ٹیکنیشین، انجینئر اور ہیلپر کے طور پر یہ کام کر رہے تھے۔ اس حوالے سے بات کریں گے سمر عباس سے۔ سمر، بتائیے گا یہ کون کون ہیں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے جعلی ڈگری میں ملوث 3 PIA کے ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں زاہد رضا، منظور حسین اور وحید جمالی ہے، جبکہ ملزمان نے جعلی ڈگریوں کا استعمال کرتے ہوئے PIA میں بطور ٹیکنیشین اور انجینئر ہیلپر ملازمت حاصل کی۔ ملزمان کے خلاف پروٹیکشن آف کرپشن ایکٹ اور پرویژن آف کرپشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ مزید اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مزید اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سمر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ٹرین سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے، جدید سہولیات سے آراستہ نئے مسافر کوچیں دسمبر میں پاکستان پہنچیں گی۔ پہلی کھیپ 230 کوچ پاکستان لائی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ، بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان ریلوے کے جو مسافر ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ نئی اور جدید ٹرینوں میں سفر کر سکیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان ریلوے سے جو ہے وہ چین سے آرڈر کی گئی تقریباً 230 نئی مسافر کوچیں جو ہے ملنے والی ہیں۔ ان کی پہلی کھیپ دسمبر 2022 میں ملنا شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ ان جو ٹرینیں جو مل رہی ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ یہ کوچز ہیں، تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کے لیے یہ موزوں ہیں، اور جلد ہی یہ جو ہے وہ پاکستان ریلوے کا حصہ بن جائیں گی۔ بہت شکریہ عادیہ۔ بات کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چھٹی کے روز بھی جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی آتی نہیں اور بل دگنے آ جاتے ہیں۔ شہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ چھٹی کے روز بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ سے رہائشی اور کاروباری سب متاثر۔ لوڈ شیڈنگ سے 27 شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر بجلی بند رہتی ہے، بل ڈبل کر دیے ہیں۔ حکومت کے الیکٹرک کو لگام دے، دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے گھروں میں پانی بھی نہیں بھرتا۔ ہم کس کو پوچھیں، ہم کس کو بتائیں؟ حکومت سن رہی ہے ہماری، کسی کی سن نہیں رہی ہے۔ حکومت بس اپنی میں لگی ہوئی ہے اور عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ کیا آج کل کے لائٹ اتنی جا رہی ہے کہ کم سے کم 4-4 5-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور مچھر اتنے۔ یہ پانی بھرنے کا ٹائم ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، 9 بجے چلی جاتی ہے، 10 بجے آتی ہے۔ شہر کے دیگر علاقے گلستان جوہر، نیو کراچی میں بھی بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن اقبال، لیاری، ملیر، لہنزیریا، شاہ فیصل کے علاقے بھی متاثر ہیں۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے۔ اس وقت 400 میگا واٹ کے قریب شارٹ فال کا سامنا ہے۔ کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ حبیب خان، City 21۔ اور آپ کو بتائیں کہ بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بحران بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی میں گیس کا بحران ختم نہیں ہو سکا۔ سوئی صدر نے 24 گھنٹوں کے لیے جنرل انڈسٹریز کو بھی گیس کی فراہمی بند کر دی۔
सीएनजी स्टेशन भी 3 रोज के लिए बंद हैं। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। स्विस सदरन गैस कंपनी ने कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। सीएनजी सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। सीएनजी सेक्टर को भी 72 घंटों बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। स्वी गैस कंपनी की तर्जुमान का कहना है कि घरेलू सारिफिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लॉज मैनेजमेंट की जा रही है। जेल चुरंगी से पीआईबी कॉलोनी जाने वाली शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई है। खस्ता हाल शाहराह हादसात का सबब बनने लगी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैयद नुमान गिल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद की खस्ता हाल शाहराहें बनी मुसाफिरों के लिए वबाल जान। जेल चौरंगी से पीआईबी और तीन हट्टी रोड जाने वाली शाहराह पर बरसात के सबब बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। शाहराह की खस्ता हाली के बाइस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। सड़क की हालत जार देख कर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ये काफी टाइम गुजर गया। ये आप रोड देख रहे हैं ना, ये हजारा बार बन चुका है, लेकिन नाकिस मटेरियल और नाकिस कारकर्दगी की बिना पर ये जो है बामुश्किल 15 से 20 दिन चलता है और फिर दोबारा टूट जाता है। बहुत से हादसा हुए हैं और ये बहुत से खड्डे हैं, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, ख़राब हैं। बारिशों से और ख़राब हो गई। टूटी हुई सड़कों पर बहुत से हादसे हो रहे हैं सर। मुतालिका हुक्काम की मुबैना गफलत से शाहराह पर जगह जगह खड्डों के सबब हादसात होना भी मामूल बन गया है, जबकि बरसात के दौरान ये शाहराह किसी खतरे से कम नहीं, जिस पर एक्शन लेने को कोई बल्दियाती नुमाइंदा तैयार नहीं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। शाहराह पाकिस्तान समेत शहर की 24 मरकजी शाहराहों पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हालिया बारिशों के दौरान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को नुकसान पहुँचा था। शाहराह पाकिस्तान के 8 किलोमीटर तवील ट्रैक की मरम्मत होगी। केएमसी हुकाम का कहना है कि मरम्मती काम 24 घंटे जारी रहेगा। दूसरे मरहले में शाहराह उस्मान और शाहराह कायदीन की मरम्मत शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची की शाहराहों की फौरी मरम्मत के लिए 12 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट जारी की है। शहर की दीगर सड़कों की मरम्मत का काम भी किया जाएगा। अमरीकी डॉलर के रुपए पर वार। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 220 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ है और ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 12 रुपए महंगा होकर 230 रुपए पर पहुंच गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर फराचा का कहना है कि स्मगलिंग बढ़ने पर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क नुमाया हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 1 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 220 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है। साथ ही एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 8 करोड़ 70 लाख डॉलर कमी से 7 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गए हैं। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर फराचा का कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग बढ़ने की वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा हो गया, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। जैसे कि मैंने आपके जरिए पहले कई दफ़ा कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त डॉलर 235 से 238 रुपए का है और पेशावर में 233 रुपए यानी कि 233। तो उसका असर है कि सारा का सारा डॉलर और दीगर करेंसीज स्मगल होके मेन अफगानिस्तान जा रही हैं या और दूसरे जराए से स्मगल हो रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 12 रुपए महंगा होकर 230 रुपए पर जा पहुंचा। एक हफ्ते में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक डॉलर का फर्क 9 रुपए 34 पैसे हो चुका है। एक हफ्ते में यूरो 10 रुपए महंगा होकर 230 रुपए और बरतानी पाउंड 8 रुपए इजाफे से 270 रुपए का हो गया है। एक हफ्ते में इमारती धर्म 3 रुपए 80 पैसे इजाफे से 64 रुपए और सऊदी रियाल 3 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 61 रुपए 50 पैसे पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मंदी के बादल छाए रहे। मुसलसल 4 हफ्तों से तेजी के बाद सरमायाकारों की प्रॉफिट टेकिंग पर एक हफ्ते के दौरान मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 679 पॉइंट्स की कमी 42,591 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 91 अरब रुपए की नुमाया कमी हो गई। अशरफ खान की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 4 हफ्तों से तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मंदी देखी गई। हफ्ते में 100 इंडेक्स में 679 पॉइंट्स की मंदी हुई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.56% कमी से 42,591 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 40 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 91 अरब रुपए कमी से 7,110 अरब रुपए रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 15% पर बरकरार रखने के भी स्टॉक मार्केट पर असरात देखे गए। अशरफ खान, सिटी 21।
और था जिसका इंतजार आने वाला है वो शाहकार। एशिया कप के सिलसिले में आज रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के माबैन T20 क्रिकेट मैच होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात की हिदायत पर महकमा बागात ने 3 मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की हैं। मजीद बात करते हैं हिल पार्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं और रिवायती हरीफों के दरमियान यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का जो मैच है, अहम तरीन मैच इसे करार दिया जा रहा है, वो अब से चंद लम्हों के बाद जो है वो शुरू होने वाला है। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा बागात KMC की जानिब से शहरियों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए 3 बड़े पार्कों में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं, जहाँ पे शहरी न सिर्फ इस पूरे मैच को देख सकेंगे बल्कि पुरफिजा माहौल से एंजॉय भी कर सकेंगे। डायरेक्टर जनरल बागात KMC जुनैदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा सर, क्या इंतजामात किए गए हैं इस क्रिकेट मैच के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट जो है कराची के शहरियों को जुनून की हद तक पसंद है। देखिए, ये आज जैसे आप देख रहे हैं कि हम हिल पार्क में हैं, हमने 3 जगह पे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पे 3 जगह पे हमने ये स्क्रीन्स का इंतज़ाम किया है, जो कि हमारा हिल पार्क है, फेरियर हॉल है और क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने किया ये कि इसमें एक चीज़ ये की है कि हमने KMC फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया है बैरिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये जो मैच देखने पब्लिक आएगी तो क्या उनको किसी किस्म की कोई पाबंदी होगी कि ये जो फ्लड रिलीफ कैंप है इसमें लाजमी डोनेट करना है उनको, या एक एजाजी तौर पर आपकी जानिब से लगाएंगे? हम एजाजी तौर पे मोटिवेट करेंगे उन्हें, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे रश होता है, तो लोग आएँ और हमारे भाइयों के साथ जो कि डिस्टर्ब हैं सैलाब में और जिनकी ज़रूरत है इस वक्त हमारी, तो KMC ने अपने रिलीफ फंड में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा हों और हम उनकी मदद कर सकें। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि इसके लिए कितना अमला आपकी जानिब से डिप्लॉयमेंट की गई है, और ख़ास तौर पे इस किस्म के मैचेस वगैरह जो होते हैं तो लोग उसमें जज्बाती भी हो जाते हैं क्योंकि हार जीत दोनों होती हैं, तो किसी किस्म के कोई अमन व अमान की सूरत हाल जन्म न ले उसके लिए क्या इंतजाम हैं? हमारे एक तो इसमें हमने अपने सिटी वार्डन्स डिप्यूट किए हुए, तकरीबन 20 हमारे सिटी वार्डन होंगे, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं माली वगैरह वो होंगे यहाँ पे, और हम लोगों को भी एक तरगीब देंगे कि मैच है, मैच की तरह से देखें, ये एक स्पोर्ट्स है, हार जीत खेल का हिस्सा होती है, और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो रिलीफ कैंप में ज़रूर हिस्सा लें। बिल्कुल, रिलीफ कैंप में भी हिस्सा लें, और बड़ी मैच के लिए बड़ा इंतज़ाम KMC की जानिब से किया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहरियों के लिए तोहफा करार दिया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने IFBB एशियन चैंपियनशिप के लिए 10 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया है। कौमी दस्ता 1 सितंबर को रवाना होगा। भारी भरकम जसामत, खूबसूरत कटिंग और मिस्टर एशिया बनने की जुस्तजू। पाकिस्तानी तनसाजों का 10 रुकनी दस्ता IFBB एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तैयार। कौमी दस्ते में मिस्टर पाकिस्तान कामरान बलोच, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान फिदा हुसैन और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान गुल नवाज जैसे नामवर तनसाज शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हमारे सारे खिलाड़ियों की बड़ी भरपूर तैयारी है। इसमें हमारे कोच में आमिर भाई, तारिक भाई, इकबाल की बड़ी मेहनत है, और फल उम्मीद है हम इंशाअल्लाह ताला कि हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह नाम डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक परवेज का कहना था कि इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की है। कौमी बॉडी बिल्डिंग में ये एक नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्ता है जो कि इस बार मुल्क से बाहर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेगा, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस सिंध के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस दफ़ा 10 खिलाड़ियों की टीम हमारे साथ इंशाल्लाह इस इवेंट में जा रही है, और उसमें तमाम पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स शामिल हैं। निजी होटल में मुनक्कदा तकरीब में तनसाजों को पाकिस्तानी जर्सी पेश की गई। 2 से 5 सितंबर तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में कौमी तनसाज 14 कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि नौजवानों को सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखना बहुत ज़रूरी है। 10 करोड़ रुपए से यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है।
सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग ट्रायल्स की इफ्ताही तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी शाहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि नौजवानों को सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो माशरे का एक मौसर हिस्सा बन सकें। खेल के अलावा कोई दूसरा शोबा ऐसा नहीं जो तमाम मकतबा फ़िक्र को यकजा रख सके। उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के 12 गेम्स का बजट 2700 मिलियन रुपए है, जिसमें से 100 मिलियन रुपए हॉकी इवेंट के लिए मुख्तस है। सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम यूथ के लिए वज़ीर-ए-आज़म का एक मुनफरिद मंसूबा है। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों की एक नई क़यादत को परवान चढ़ाएंगी। तकरीब से टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग के चीफ सेलेक्टर ओलंपियन हनीफ खान, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और दीगर ने भी खिताब किया। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी से ही कि हमने स्केड्यूल में थोड़ा सा 1 वीक और 10 डेज डाल दिया, क्योंकि कराची हमारा प्लान था, मैडम का प्लान था, इनॉग्रेशन हो रही है, कराची के ट्रायल्स हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी हैं उसमें हम 10 डेज या 8 डेज का हम वक्फा कर रहे हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी शाहज़ा फातिमा ने KHA कॉम्प्लेक्स में बॉल को हिट लगाकर सिलेक्शन मुहिम का आगाज किया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। डेनिंग लॉ स्कूल के 150 तलबा ने लंदन यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल कर ली। मुकामी होटल में तलबा में इस्नाद की तकरीब सजी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कानूनदान बनने का अज़्म। डेनिंग लॉ स्कूल के 150 से ज़ायद तलबा ने जिंदगी का अहम संग मील उबूर कर लिया। लंदन यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल कर ली। डेनिंग लॉ स्कूल की जानिब से डिग्री होल्डर्स के लिए मुकामी होटल में ग्रेजुएशन तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। उनके हमरा सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस आगा भी मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पास होने वाले तुलबा को मुबारकबाद और मुल्क की खिदमत करने की तरगीब दी। It is well known that the convocation is a memorable day when we celebrate success of fresh graduates. It is my pleasure to congratulate all young graduates with the core of my heart on completion of their law degrees from University of London. तकरीब में तुलबा तो अपनी कामयाबी पर फूले न समाये, वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी पर खुश दिखाई दिए। यही है कि सब जो भी स्टूडेंट हैं वो सब वर्क हार्ड करें और आगे का अपने फ्यूचर के लिए सोचें। I'm feeling really good. I am like finally graduated. I'm a lawyer now, so yeah, really happy. And thank you Sir Abdul Qadir and Sir Huzaifa for being such good faculty members. पास होने वाले तुलबा ने आखिर में रस्मी टोपी फेंक कर तकरीब का इख्तिताम किया। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। कराची के साहिल पर मट्टी के फनकार ने अपनी महारत का इजहार करते हुए रेत पर कायदे आज़म का मज़ार, जलपरी, दर्रा खैबर और दीगर चीज़ें बनाकर सबको हैरान कर दिया। फनकार ने और क्या क्या बनाया है, देखते हैं सैयद नोमान गुल की इस रिपोर्ट में। अगरचे दुनिया भर में मिट्टी से बर्तन और खिलौने तैयार करने की तारीख कदीम है, लेकिन पाकिस्तान में इसके एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद हैं जो जगह जगह अपनी सलाहियतों से शहरियों को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही पंजाब के ज़िला रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार मूसा अकरम ने शहर कायद के साहिल की रेत पर कायदे आज़म का मज़ार, बादशाही मस्जिद, खैबर पख्तूनख्वा का दरे खैबर, जलपरी, शेर व दीगर चीज़ें बनाकर शहरियों के दिल जीत लिए। इस मौके पर शहरियों ने फनकार की इन सलाहियतों को बेहद सराहा। देख के एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है, मतलब एक नई सी चीज़ देखने को मिली है, कला यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ हर किसी को सब कुछ आता होगा, और मतलब अगर कोई फनकार अपना फ़न दिखाता है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन बात वही आती है कि टैलेंट को भी सपोर्ट नहीं करते। अब बहुत से गेमर्स हैं इसके हवाले से, अब जैसे ये चीज़ बनाई है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि अभी देखा मैंने इसको और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मूसा अकरम का कहना है कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। हमारे में बहुत टैलेंट है, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर स्टेज पे हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारे ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ निखारेंगे मुल्क के लिए, अपने लिए हम मुल्क को बनाएंगे इंशाल्लाह। मौजूदा दौर में बगैर तार के रिमोट कंट्रोल गाड़ियां, जहाज, नाच गाने वाली कारें, महारत से तैयार की जाने वाली पिस्तौल, बंदूकें और कलाशनकोव के बाइस बच्चे मिट्टी के खिलौनों से नामानूस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे फनकार तारीख में कहीं गुम हो रहे हैं। जबकि अगर इन फनकारों पर तवज्जो दी जाए तो ये दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन करने का सबब बन सकते हैं। फनकार नहीं बल्कि फनकारों का फ़न बोलता है, और यकीनी तौर पर इन फनकारों को अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ सैयद नोमान गुल, कराची।